Good morning, students. As we have completed our revision work, and before starting our revision work, we have started our chapter 5, that is housing all around. And in this chapter, we have discussed about the different type of houses, that is kacha house, pakka house, and the temporary house. And we have also discussed about the materials used to make the kacha house, that is straw, wood, whereas to make the pakka house, cement, stone, bricks, rods are used, and the kacha house cannot withstand the harsh climatic condition, whereas the pakka house can withstand the harsh climatic condition. And the kacha houses, for example, hut is earlier found in the villages, but nowadays due to technology development in villages also the pakka houses are there, and there is also supply of electricity and water also. Then we have discussed about the houses which are found earlier, which are made earlier, are spacious and large gardens are there. They are single storied, whereas there is an availability of sunlight and fresh air is also there. But nowadays, as due to increase in the population, the space is decreasing. So large number of factories, large number of houses and schools are needed. So the space is only that much only. So the houses or the schools, whatever they are made nowadays, they are not as spacious as earlier. Then we have now our next topic is type of houses in cities. What type of houses found in the cities nowadays? Earlier it was as such the fitting of the light and the pipe was externally, but nowadays what happened, it is internally fitted. Then a large number of wallpapers, painting, all are available in the markets, and modular kitchen all are also made nowadays. So what type of houses are available or you see around in the cities nowadays? First of all, apartments. अपार्टमेंट जो होते हैं वो फ्लैट्स की तरह होते हैं और एक ब्लॉक्स में, बिल्डिंग्स में बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए जाते हैं. जनरली फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ आसपास देखें तो जैसे कि आपके ये मेवाड़ अपार्टमेंट है, ये भी क्या है, एक तरह से अपार्टमेंट ही है, ये भी फ्लैट्स होते हैं. एंड दे आर बिल्ट इन मैनी स्टोरीज, बहुत सारी इसमें स्टोरीज बनाई जाती हैं इन अ लार्ज बिल्डिंग और ब्लॉक, एक ब्लॉक में ही और बिल्डिंग में खूब सारी स्टोरीज बनाई जाती हैं. एंड इन दिस देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लिफ्ट इज ऑल्सो देयर एंड कॉमन स्टेयरकेस आर यूज्ड बाय द डिफरेंट पीपल्स. एंड इन दिस हाउसेज और इन दिस अपार्टमेंट्स guard is also there, supply of electricity, plumbing is also there, cleanliness is also provided, and cleanliness is also maintained, parks are also there, and CCTV cameras are also installed in this type of apartments nowadays. Now bungalow जो होते हैं, these are independent single storied spacious हाउसेज विद बालकनीज. ये जो होते हैं सिंगल स्टोरीड होते हैं, इसमें स्पेशियस रूम्स होते हैं, बालकनीज प्रेजेंट होती है, गार्डन्स एंड गैराजेस आर ऑल्सो देयर, एंड मे हैव स्लोपिंग और फ्लैट रूफ. रूफ जो होती है या तो स्लोप के फॉर्म में होती है, स्लाइड होता है, या फिर जो फ्लैट होते हैं उस तरह से भी उसको अरेंज किया जा सकता है, अरेंज होती है. देन स्लम्स जो होते हैं, दीज आर फॉर द पीपल हु केम फ्रॉम द विलेजेस टू वर्क इन द सिटीज़ एंड दे डू नॉट हैव देयर ओन हाउस. खुद का हाउस उनके पास नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, ये अनऑथराइज जो प्लेस होती है वहाँ पर ये ओल्ड शीट्स ऑफ टिन से, प्लैंक्स ऑफ वुड, लकड़ी के जो वुड होते पीसेज होते हैं बड़े बड़े, उनसे प्लास्टिक शीट्स को यूज़ करके और क्लोथ्स को यूज़ करके अपने लिए हाउसेस, टेम्परेरी हाउसेस ये बनाते हैं. एंड दीज आर अनऑथराइज. ये जो होते हैं स्लम्स जो होते हैं वो अनऑथराइज हाउसेज होते हैं, हैंस डू नॉट हैव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देयर. आप वहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो ओपन दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मॉस्किटोज़ हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो इजीली ब्रीड कर जाते हैं, और ये जो पीपल होते हैं ये बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी डिजीज़ से भी सफ़र करते हैं. सो अपने आप को एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हम एक क्लीन और कंफर्टेबल हाउस में रहें, क्योंकि स्लम्स क्या है, ये जो है प्रॉपरली नहीं मेंटेन है, तो द क्लीननेस एंड कंफर्टेबल हाउसेज आर नेसेसरी टू लीड अ हेल्दी लाइफ. So students, our next topic is difference between a house and a home. एक हाउस में और एक होम में क्या डिफरेंस होता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस हाउस, यानी कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक 4 वॉल्ड एक रूम है डेट इज़ मेड फॉर अ पीपल और अ फैमिली टू लिव. वेयर एज हाउस होम जो होता है
हम किसी भी हाउस को होम जब कहेंगे जब वहाँ पे रहने वाले जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ और अच्छे से रहती है, बहुत लविंग फैमिली है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सो देन वी कॉल दैट हाउस एज अ होम। सो हाउस की अगर हम बात करें, सो हाउस इज़ अ बिल्डिंग मेड फॉर पीपल और फैमिली टू लिव इन। ये सारे क्या हैं, हाउसेस हैं जो एक फैमिली के लिए या फिर किसी पीपल के लिए रहने के लिए बनाए जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे हाउस को होम कैसे बनाएं। सो होम इज़ अ प्लेस वेयर अ फैमिली इज़ लिविंग और द फैमिलियर स्पेस इनसाइड द पर्सन हाउस। एक किसी भी इंसान के घर में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो अपनत्व है, जो लव है, अफेक्शन है, देन इट इज़ नोन एज होम। और द प्लेस, और एक वो जगह होम कहलाती है वेयर समवन बॉर्न और लिव एज अ चाइल्ड, जो जहाँ पर उसका बर्थ हुआ है और वहाँ पर वो एक चाइल्ड की तरह उसने अपना सारा जो लाइफ है वो स्पेंड किया, देन दैट पर्टिकुलर हाउस इज़ अ होम फॉर दैट पर्टिकुलर person or a people. Then house is a four wall structure. एक four wall structure को हम house बोलते हैं, built with, बनाया जाता है, that is built with concrete and, जो कि कॉन्क्रीट है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, स्टोन से बनाया जाता है। वेयरएज होम टॉक्स अबाउट द पीपल हु लिव्स इन इट। वेयरएज हम घर की अगर बात करें, होम की अगर हम बात करें, तो होम जो है वो बात ये करता है, वो बताता है कि उस घर में रहने वाली जो फैमिली है उनके बीच में जो हार्मनी है, जो उनके बीच में एक दूसरे के प्रति अफेक्शन है, उसको शो करता है। वेयरएज लिविंग इन अ लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम एक एज वी ऑल डिस्कस दैट लिविंग इन अ क्लीन एंड कंफर्टेबल हाउस इज़ नेसेसरी फॉर टू लीड अ हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ के लिए, फिजिकली हेल्दी अपने आप को रखने के लिए हमें साफ़ सुथरे घर में रहना चाहिए, बट अपने आप को मेंटली वेलबींग रखने के लिए और अपने आप का एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है घर के सारे जो मेंबर्स हैं वो हार्मनी के साथ रहें, बहुत ज़्यादा उनमें एक दूसरे की केयरिंग हो, अफेक्शन हो, देन दैट हाउस इज़ सेड टू बी होम। यानी कि अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हमारे घर में ज़रूरी है कि हमारे घर में एक दूसरे के प्रति हम रेस्पेक्ट करें, उनके साथ हम प्यार से रहें। सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर 5. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।